रोज उठना। Morning, everyone. I hope you all can hear me now. कल हम लोग मैनेजमेंट ऑफ कैश पढ़ रहे थे और फंक्शंस हमको उसका कंटिन्यू करना था. Functions of cash management will include these things that we basically, if we do the cash management, if the cash management is being done in any business, then basically these things we will be expecting as the functions to be followed or to be done, which is like investing of idle cash. Idle cash is basically that cash which is unused and which business for the time being does not require, and we can go ahead for investment of that particular idle cash which is not being used. But we also have to understand that if we are not using that, if we are not using the idle cash and if we are investing, then we should be investing it for that particular period of time only, for which we do not require it. And when we require the cash, it should be back in the business, and we should be able to withdraw it from the investments also. Now, controlling of cash flows. Cash flows are of two kinds. Cash flow can be inflow and outflow as well. Restricting the cash outflow and accelerating the cash inflows is an essential function of the business. We should be saying that what latest we can make the cash outflow. If we, like outflow means that if we are going to make the payment to somebody, some vendor or anything, then we should restrict the outflows. Means that as much as possible we should be making the outflows, uh, you can say delay in outflows as much as possible. Like if we should be able to, if we are able to restrict the outflows as much as possible without interest, that we don't have to pay any penalty for those payments, then we should be holding it.
and also these outflows should be taking place as per the policy also of the business, that what exactly is the payment term we have agreed with the outside party. Planning of cash includes cash management is all about planning and decision making. Planning means decision making. प्लान करना, हम कुछ भी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं या कोशिश करते हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको प्लानिंग करनी होती है कि हम कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करेंगे, क्या हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, एंड देन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन टेक्स प्लेस. मैनेजिंग कैश फ्लोज. नाउ पहला सेकंड पॉइंट था कंट्रोलिंग कैश फ्लोज. नाउ दिस इज मैनेजिंग कैश फ्लोज. कंट्रोलिंग का मतलब हो रहा है कि जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करें जितना ज़्यादा हो सकता है, और इनफ्लोज को हमें बढ़ावा देना है, एक्सीलरेट करना है. जितना जल्दी हमारा पैसा जो मार्केट में है बिजनेस का, वो बिजनेस के अंदर वापस आ जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा. तो हमें कैश इनफ्लोज को तो एक्सलेक्ट करना था कंट्रोलिंग में, और रेस्ट्रिक्ट करना था आउटफ्लो को. नाउ मैनेजिंग कैश फ्लोज में क्या करना है? मेंटेनिंग द प्रॉपर फ्लो ऑफ द कैश इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कॉस्ट कटिंग एंड प्रॉफिट जनरेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स इज नेसेसरी टू अटेन अ पॉजिटिव कैश फ्लो. कैसे? कि कॉस्ट कटिंग का क्या मतलब होता है? कॉस्ट कटिंग हम अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं एज द ह्यूमन बीइंग, एज द पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज द जस्ट बिजनेस मैन, बट एज द इंडिविजुअल ऑल्सो वी डू इट. लाइक जहाँ पर हमें जो चीज़ हमारी अपनी रियल लाइफ में हमें ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की, हम वो चीज़ को अवॉइड करते हैं या फिर एटलीस्ट उस पर स्पेंड नहीं करते हैं, ताकि हमारा पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उस पर. सेम चीज़ हमको बिजनेस में भी करनी होती है कैश इनफ्लोज में, कि कॉस्ट कटिंग हमें लगता है कि अगर कुछ ऐसे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व है बिजनेस में जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, और अगर नहीं होंगे तो हमें कोई लॉस नहीं होगा बिजनेस में, उन बेसिकली उन जो बेसिकली स्टेप्स हैं या वो जो प्रोसेस है या वो जो काम है बेसिकली, उसको हमें इग्नोर ही करना चाहिए. वी शुड नॉट बी फॉलोइंग देम. जस्ट अ मिनट. ओके, सो coming back to optimizing the cash level. Optimizing का मतलब optimum level of cash should be maintained in the organization, which means कि ना तो वो maximum हो ना वो minimum हो. Optimum मतलब होता है जितना required है उतना हमें availability रखनी है. उससे अगर ज़्यादा है तो वो surplus हो जाएगा. Surplus भी हमको नहीं रखना चाहिए. Surplus अगर है तो हमें investment कर देनी चाहिए, और जितना हमें चाहिए उससे डेफिसिट तो होना ही नहीं चाहिए, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए. अदरवाइज हमारे बहुत सारे फंक्शंस ही रुक जाएंगे, बहुत सारे प्रोसेस ही रुक जाएंगे. तो डेफिसिट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वी हैव टू मेक स्मार्ट यू कैन से अरेंजमेंट्स बिफोर वी फॉल कैश डेफिसिट इन द बिजनेस. ये सब थे फंक्शंस ऑफ दी कैश मैनेजमेंट. नाउ कैश मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में फॉर द कैश मैनेजमेंट. नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ नेचर वी हैव, व्हाट इज़ आवर काइंड ऑफ बिजनेस, या हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस है या क्या है. पहला है बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट. ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑप्ट फॉर अ बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट एट द इनिशियल स्टेज टू मीट द अर्जेंट कैश रिक्वायरमेंट्स एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि हमारे पास हमें अपनी एक लिमिट सेट कर लेना चाहिए बिजनेस को, कि इस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हम उधार कैश में नहीं लेंगे. दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट, which shows the maximum limit basically to a business. तो वो हमें सेट कर लेना चाहिए कहीं कि ये हमारा, कई बार ऐसा होता है ना अपने रियल लाइफ में भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि दिस इज व्हाट आवर लिमिट इज एंड वी विल नॉट क्रॉस दिस लाइन no matter whatever the thing goes. So line of credit is this. Now money market fund. While carrying on a business, the surplus fund should be invested in the money market funds.
मनी मार्केट फंड क्या होता है? ये बेसिकली जैसे कि हमारे बैंक्स एंड अदर थिंग्स होते हैं ना, मनी मार्केट फंड इज फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में तो हम कर सकते हैं कि हमने कोई मशीनरी, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, ऐसा कुछ चीज़ में इन्वेस्ट किया, या किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जो कि ईयर्स एंड ईयर्स चलेगा। लेकिन मनी मार्केट फंड क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है। इसमें हम कब इन्वेस्ट करेंगे? जब हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही मनी कुछ सरप्लस में है और वो आइडल पड़ा रहेगा, उसका उस पर कुछ हमें अर्निंग नहीं मिलेगी। कैश अगर आपके पास पड़ा रहे, चाहे वो कितना ही ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश हो, अगर वो आपके पास इन हैंड पड़ा रहेगा और आप उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो वो अमाउंट ज़रा भी बढ़ेगा नहीं। इट विल रिमेन एज इट इज़। 1 करोड़ विल रिमेन 1 करोड़ इवन आफ्टर 5 years, अगर वो आपके पास कैश में है। बल्कि कम ही हो जाएगा अगर आप खर्च करेंगे। तो खर्च नहीं भी करेंगे तो भी इट विल नॉट इंक्रीज विद अ सिंगल पेनी। तो मनी मार्केट फंड में क्या होता है कि जो भी हमारा सरप्लस कैश है, हमको लग रहा है कि फालतू है, सपोज हमारी रिक्वायरमेंट 1 लाख की है, हमारे पास पड़ा हुआ 2 लाख है, अगले 2 महीने तक वो 1 लाख रुपीज़ जो सरप्लस है वो ज़रूरत नहीं है उसकी यूज़ होने की, तो हम उसको मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। हम इससे कुछ ना कुछ तो पैसा अर्न कर लेंगे, एंड वेन एवर वी विल वॉन्टेड वी विल कम, वी विल हैव इट बैक इन द बिजनेस फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज और फॉर यूजेज वट एवर। नाउ लॉक बॉक्स अकाउंट, जैसे हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होते हैं, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, वैसे एक लॉक बॉक्स अकाउंट हो जाता है। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, बैंक ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी विच enables the companies to get their payments mailed to its post office box. This lockbox is managed by the banks to avoid manual deposit of cash regularly. Lockbox अकाउंट का मतलब होता है कि वो ऑनलाइन हम एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ऑनलाइन हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं जिसके थ्रू जो भी हमारा सरप्लस कैश है, वी आस्क द बैंक टू पुट इट इन दैट बेसिकली इन दैट अकाउंट। जैसे होता है कि हमारा सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में के से अटैच्ड ही हमको एक एफडी अकाउंट भी मिल जाता है, जो हम अगर ओपन कर लेते हैं खुद ही हम चाहते हैं। तो अगर कोई एक्सेस करता है इंटरनेट बैंकिंग आप में से, तो आपको पता होगा। तो लॉकबॉक्स अकाउंट भी एक ये फैसिलिटी जो बैंक्स दे रहे हैं आजकल, सर्विस है बेसिकली उनकी, जो बैंक्स देते हैं बिजनेसेस के लिए, कि लॉकबॉक्स अकाउंट में आप अपना सरप्लस जो कैश है वो उसमें डाल दो, बाकी अपना सेविंग में रखे रहो, जो कि ऑपरेशनल रहेगा। तो लॉकबॉक्स अकाउंट में आपने जैसे ही पैसा डाला, आपको उस पर अर्निंग जो है थोड़ा ज़्यादा रेट से मिलनी शुरू हो जाती है। एक सेकंड, मुझे कॉलेज से पिंकी मैम का फ़ोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए मैम। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
सो लॉग बुक अकाउंट हो गया, जो भी एक्सेस कैश है वो आपको मैनुअल नहीं जाना हर बारी कैश डिपॉजिट करने। वेट अ मोमेंट, sorry. So we can put the logbox basically, we can put the excess cash. Now sweep account. The organization should avail the facility of sweep account, which is a mix of saving and fixed accounts. देखिए क्या होता है कि अगर आप इंडिविजुअल अपना अकाउंट की बैंकिंग भी देखेंगे ना, सो अगर सपोज हमारे पास कोई भी सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक का, चाहे वो कोई भी बैंक हो, यस बैंक हो, आईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, सारे बैंक सब हमको भी एज एन इंडिविजुअल भी ये स्वीप अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं। स्वीप अकाउंट में क्या होता है कि जस्ट छोटा सा ऑप्शन होता है कि अगर हमने अपना कोई भी एक्सेस कैश है जो हमें यूज़ नहीं करना, हमने उसकी एफडी कर दी। एफडी इज फिक्स डिपॉजिट, हमने वो क्रिएट कर दिया। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, बस हमको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि आपके सेविंग अकाउंट में आपको 4% मिल रहा है, एफडी अकाउंट में आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा। वो ज़्यादा परसेंटेज अर्न करने के लिए हम लोग एफडी ओपन कर देते हैं, लेकिन उसमें एक फैसिलिटी होती है स्वीप अकाउंट स्वीप करने का। वो स्वीप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि अगर हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा कम पड़ा और हमने यूजेज के लिए ज़्यादा कुछ दे दिया, सपोज हमने चेक्स काट दिए, किसी को चेक दे दिया हमारे अपने अकाउंट सेविंग अकाउंट से 10 लाख का, और उसमें पैसा पड़ा हुआ था 15 लाख, तो स्वीप फैसिलिटी से क्या होगा, जो बैलेंस 1 लाख रुपीज़ होगा वो एफडी अकाउंट से बैंक अपने आप ले लेगा। स्वीपिंग फैसिलिटी का मतलब ये होगा वहाँ से ले लेगा, और उस 1 लाख रुपीज़ पे वो एफडी वाला जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जब हुई कि हमने शॉर्टफॉल हुआ कैश का, तो हमने ले लिया। तो स्वीप अकाउंट भी कंपनीज रखती हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने ज़्यादा भी अर्न कर लिया, और जब हमें ज़रूरत पड़ी कैश की तो वहाँ से निकल भी गया उतना कैश, ऐसा होता है वो। सीडीज और कैश डिपॉजिट्स बेसिकली, ये भी फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी है और हमारा जो है डेफिसिट में नहीं चल रहा है, सरप्लस में चल रहा है कैश अमाउंट, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या हम बेसिकली फॉलो कर सकते हैं आप लोगों का, मुझे ये बताइए। अभी में इसके बाद आप लोग फ्री हैं अभी 10 to 11 के बीच में? कोई क्लास है आपकी भी आज 10 to 11? एनीबडी कैन आंसर मी? यस मैम, क्लास है। अभी आप लोग आज फिर कौन से स्लॉट में फ्री हैं अभी इसके बाद? ये तो मैम क्लास में ही पता चलता है। नहीं, मेरा मतलब आज कोई क्लास ऐसा है जो सारी क्लासेस अलॉटेड, आपको पता है ना आज का टाइम टेबल, तो उसमें आज कौन सा ऐसा स्लॉट है जिसमें कि कोई क्लास नहीं है अभी आपकी? खाली तो नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास है 3 बजे हमारी। मुझे एक्स्ट्रा क्लास ही लेना था आप लोगों का, तो इफ़ पॉसिबल टुडे और टुमारो मुझे कोई भी टाइम आप लोग बता दीजिए विच इज़ फ्री फॉर यू गाइज। मैम टाइम तो मैम अभी जैसे 10 से 11 भी है। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, 10 से 11 अभी है आपका? 10 से 11 में कोई हम्म कोई लेक्चर नहीं है आपका? 10 से 11 मैम लेक्चर है, मैम ने लिंक भेज दिया ना, अंशुल मैम ने। अच्छा है, तो फिर कौन से में नहीं है? 11 to 12, 12 to 1 तो ब्रेक होता है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, एनी स्लॉट विच इज़ फ्री फॉर यू गाइज टुडे और टुमारो। मैम एडजस्ट कर लेना आप आईआईटी वालों के साथ। आईआईटी मैम, उनका सिलेबस खत्म हो गया। किनके साथ? आईआईटी कौन है वो लेक्चरर अनीता आपका? मैम है शायद। तो अनीता मैम का तो अभी ये वाला लेक्चर जो है वो फिर उसमें वो क्या पढ़ा रही है अभी आपको? रिवीजन हो रहा वो है? मैम वो रिवीजन करवा रही हैं। नहीं, लेक्चर्स तो ऐसे नहीं ले पाऊंगी मैं। चलिए, एनीवेज वी शुड क्विकली फिनिश व्हाट वी हैव। कैश फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक्स में एक्सेलरेटिंग कलेक्शन ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल। एक्सेलरेट करना मतलब होता है बढ़ावा देना, जैसे हम गाड़ी को भी एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर जो भी है उससे। तो एक्सेलरेटिंग मीन्स बढ़ावा देना या इंक्रीज करना ऑफ कलेक्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स यानी कि वो सारे बिल्स रिसीवेबल्स जहाँ से हमें पैसा मिलना है, वही चीज़ कि हम जो है कैश इनफ्लो को ज़्यादा बढ़ाएंगे। स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेबल, जहाँ पर हमें पैसा बाहर देना है, जो आउटफ्लो होना है, उसको हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं।
पेमेंट को लेट करने का हम उतना करेंगे। कॉस्ट कटिंग हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट द अनवांटेड processes should be unwanted process steps should be controlled or maybe avoided within the business. Then regular cash flow monitoring, keeping an eye on the cash. Monitoring का मतलब है कि एक तरह से कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा, देख रहा, उस पर नजर रखे कि इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, एंड इफ इट इज हैपनिंग इन द करेक्ट एंड द राइट मैनर, द वे इट शुड बी। फाइनेंशियल मैनेजर का ये काम होता है। वाइजली यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग सर्विसेज आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज बिजनेसेस को देती हैं कि आप अपना बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी ले सकते हो, सेविंग्स के अलावा करंट अकाउंट भी आपका, करंट अकाउंट ही होता है बेसिकली, कंपनीज का सेविंग अकाउंट नहीं होता, तो करंट अकाउंट भी आप रख सकते हो, लॉक बॉक्स भी आप ले सकते हो, एफडीज भी आप कर सकते हो, स्वीप इन अकाउंट भी आप कर सकते हो, एंड ऑल दैट। अपग्रेडिंग विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करने का मतलब हुआ कि डिजिटलाइजेशन जो है, जैसे कि हम आजकल इतना कन्वीनियंटली सब काम कर पाते हैं थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, पहले ये सब चीज़ें इतना इजी नहीं हुआ करती थी हमारे रियल लाइफ में भी और बिजनेस लाइफ में भी। बिजनेस का छोटा सा एग्जांपल एक यही है कि सैलरीज जैसे आजकल हमको अपने अब घर में बैठ के इमीडिएटली सेम टाइम पर आ जाती हैं, इवन इफ इट इज सैटरडे और इवन इफ इट इज़ आर नॉन वर्किंग डे, अगर फर्स्ट हमारा सैलरी डे डिसाइडेड है तो फर्स्ट को सैलरीज आ जाती हैं, या अगर फर्स्ट इज अ हॉलीडे और समथिंग देन अ डे प्रायर वी गेट दी सैलरीज। वी डू नॉट रियली नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द ऑफिस टू कलेक्ट अवर सैलरीज। पहले ऐसा हुआ करता था कि वर्कर्स लोगों को सुबह या शाम या जो भी कोई टाइम फिक्स होता था सैलरी का, उनको खुद जाना पड़ता था ऑफिस, वो जाते थे, अंगूठा लगाते थे, साइन करते थे, वटेवर, उनको कैश में सैलरी मिलती थी। तो अगर कोई आदमी बीमार है और वो ऑफिस नहीं जा सकता तो उसके बिहाफ पर किसी और को सैलरी मिलेगी नहीं, क्योंकि उसको कोई साइन नहीं कर सकता, कोई उसका अंगूठा नहीं लगा सकता थे। बस सो मेनी प्रॉब्लम्स पहले। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये सब चीज़ें इंक्रीज हुई हैं कि ना तो हमारे वेंडर्स को हमारे सर पे आकर बैठना होता है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, ना हमें क्लाइंट से पेमेंट सिर्फ कैश में चाहिए। कितने सारे हम एज अ कस्टमर, हम अमेजोन का ही देख लीजिए, ई कॉमर्स पे या किसी को भी, कि हम बेसिकली उनको कितना ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की ईजी है कि हम उनको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, एंड नोबडी हैज टू कम एंड कलेक्ट द कैश, वी आर इग्नोरिंग ऑन दैट मैनुअल एक्टिविटीज नाउ। ठीक है, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये सब करते हुए भी कैश मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है एक तो। कोई भी प्रोसेस जो हम बिजनेस में कर रहे हैं और अगर हम उसको ये समझते हैं कि हम प्रॉपर प्रोसेस से करेंगे और ठीक तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि वो बेनिफिशियल हो, या हमारे लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कि एक तरीके से कंपनी को कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके देना है, तो वो टाइम तो लेगा ही लेगा। कुछ भी काम हम करेंगे, टाइम, इट विल टेक टाइम इफ वी आर प्लानिंग टू डू इट। तो टाइम, कैश मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स टाइम and it is a time consuming activity. It is also required to be done by the skilled people in the organization, in the financial management department. Then administrative fee का मतलब है कि somebody who is doing it needs some skills, और वो skills based काम है ये, not everybody can do it, not everybody who can understand the logic of debit, credit, inflows, outflows and all that. तो एक skill set जो person के पास होगा उसे पता होगा ये सारी चीज़ों के बारे में, और फिर वो कैश मैनेजमेंट को कर पाएगा। तो जब किसी पर्सन के पास कोई स्किल आता है ना, तो वो काम फ्री नहीं होता है, वो काम फिर इट नीड सम कॉस्ट, person would charge to do something, so that becomes the administrative fee to get this work done. Anything which is like even if an engineer is there, or even if any say management person is there, can be anybody who will be using his expertise in anything, will be charging it accordingly. So the business will not get any person's skill on a free basis, ये समझ के चलना है हमको। डिफिकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेस क्या होता है कि वो अपना अनवांटेड जो भी एक्टिविटीज होती है ना, बहुत सारा कॉस्ट कटिंग करते हैं, उनको बिल्कुल रोक कर चलते हैं जिसको कि हमें ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, बिकॉज दे आर वेरी वर्किंग एट अ वेरी स्मॉल लेवल एंड they really look for the growth. So they small business they generally do not want to go into it and face problems, and uh, risk taking factor उसमें इतना नहीं होता कि वो उसको basically कर पाए, इन्वॉल्व कर पाए किसी एक एक्सपर्टीज को फॉर जस्ट द कैश मैनेजमेंट। सो द पर्सन हु इज द ओनर हिमसेल्फ थिंक्स एंड डिसाइड्स कि क्या होना है या क्या नहीं होना, कौन सी एक्टिविटी कैश की होगी या नहीं होगी, वो अपने हाथ में रखते हैं ये चीज़ को।
ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, मैं आपकी अटेंडेंस क्लिक कर लूँ, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक, तब तक मैं आपका स्क्रीन शेयर करती हूँ न्यू वाला। I hope you can see the new screen now. नाउ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे हमने अभी कैश मैनेजमेंट में भी रिसीवेबल्स भी पढ़ा था टू सर्टेन एक्सटेंट, बट क्योंकि ये अलग से सेपरेट टॉपिक है तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। रिसीवेबल मैनेजमेंट पहली बात होता क्या है? रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल भी करना। उसको मैनेजमेंट में सब चीज़ आ जाती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग में सब कुछ किया जाता है। तो मैनेजमेंट ये हो गया। और रिसीवेबल्स का मतलब है दोज ऑल बिल्स या वो सारी पेमेंट्स बेसिकली जो हमारे पास शॉर्ट टर्म में आने वाली हैं और विच कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, हमें वो मिलने वाला है, वो सारा होता है रिसीवेबल। तो उनको मैनेज करना, यानी कि बेसिकली रिसीवेबल्स मैनेज करना यानी कि इनफ्लोज को मैनेज करना, जो हमारे पास पैसा आने वाला है। हमने किसी को सपोज क्रेडिट पर कुछ दे दिया, उधार पे कुछ दे दिया था, उधार पे किसी क्लाइंट ने हमसे कुछ स्टॉक मांगा, हमने उसको दे दिया कि ठीक है आप हमसे हमारा सामान उठा लो, फिनिश प्रोडक्ट है कुछ भी है, और उसकी पेमेंट उन्होंने बोला हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे, या जिस तरह से हमारी पेमेंट का जो टर्म है वो उसके हिसाब से करेंगे, मे बी 30 डेज 60 डेज के टाइम के अंदर अंदर। तो वो जितना जल्दी हम मंगवा सकते हैं वापस पैसा इनफ्लो, दैट इज गुड फॉर आवर बिजनेस एंड दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट इज। So the receivable management or managing accounts receivable means collecting the payments due for sales in the timely manner, कि जो टाइम पर हमें पैसा आना है उस टाइम पर तो आ ही जाए। ठीक है। When we sell any service or product or any solution to our clients or customers, जिसको भी सपोज हमने कस्टमर को कुछ पैसा, कुछ हमने प्रोडक्ट ज़्यादा दे दिया इकट्ठा, तो पैसा उससे नहीं लिया, या अगर हम कोई सर्विस बेच रहे हैं तो सर्विस ही हम देंगे, फिर कुछ भी जो भी हमने कुछ काम कर दिया यानी कि हमारा सेल हो चुका है और हमारे पास पैसा नहीं आया, वो सारा रिसीवेबल्स है। सो दे ओwe us the money to be paid in future. Collecting that money is called receivables management. क्लियर है कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं मार्केट में पड़ी हुई हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, उन्होंने हमसे ऑलरेडी कुछ ना कुछ ले लिया है और उसके बदले उनसे हमें पैसा लेना है, उन सबसे पेमेंट को कलेक्ट करना या मनी को कलेक्ट करना, कैश को कलेक्ट करना इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। इन अकाउंटिंग टर्म्स our customers who owe us money are called as sundry debtors. इनको हम डेटर्स की फॉर्म में दिखाते हैं, इस वर्ड को डेटर पढ़ते हैं, बी ई साइलेंट। तो सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स के नेम से हम इनको बैलेंस शीट में दिखाते हैं और इनको हम अपना करंट एसेट मानते हैं। करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, वो सबको हम करंट एसेट्स मानते हैं, चाहे वो कैश हो, कैश एट बैंक हो, डेटर्स हो, बिल्स रिसीवेबल्स हो, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो उन लोगों को बेसिकली हम डेटर्स बोलते हैं जहाँ से हमें पैसा कलेक्ट करना है, और जिन लोगों से हमने उधार पे कुछ चीज़ें उठाई होती हैं, सामान लिया है, कुछ किया है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि उनको हमें पैसा देना है। तो क्रेडिटर्स हमारे करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं, लाइबल है हम उनको पे करने के लिए। ठीक है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे भी, अगर कभी कोई कंपनी की बैलेंस शीट आपको तो डेटर्स एसेट साइड लिखते हैं हम और क्रेडिटर्स हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स ऑल्सो नोन एज पेमेंट कलेक्शन, कलेक्शन मैनेजमेंट या अकाउंट्स रिसीवेबल्स, तीनों का मीनिंग सेम ही है। अकाउंट्स रिसीवेबल्स और बिल्स रिसीवेबल्स भी होता है इसका नाम, बिल्स रिसीवेबल्स भी आप बोल सकते हैं। बिल्स जनरली आजकल कोई इशू करता नहीं, वैसे मेमोज इशू कर देते हैं लोग कुछ, उसके अगेंस्ट हमें एक तरह से वो प्रूफ हो जाता है मेमो कि मैं पेमेंट कलेक्ट करना है। तो बिल्स रिसीवेबल्स भी हम
अपनी करंट एसेट साइड डालते हैं, और वो भी एक तरीके से एसेट है, पेमेंट कलेक्शन करना या उस कलेक्शन का मैनेजमेंट करना, या अकाउंट्स रिसीवेबल्स या बिल्स रिसीवेबल्स, दिस इज ऑल रिसीवेबल मैनेजमेंट, जो अदर नेम्स ऑफ दिस टॉपिक। कुछ भी आपको इनमें से आप क्वेश्चन आता है तो आप समझ लीजिएगा कि रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। व्हाट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट नाउ? There is some more additional things on this. There are very few businesses which have the luxury of receiving money before selling. बहुत सारे ऐसे बहुत कम बिजनेस हैं जो कि टोटल कंप्लीट एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं। अब जैसे बहुत कोई लग्जरी ब्रांड है, सपोज एप्पल एक ब्रांड है, तो हम उसका टोटल फुल पेमेंट एडवांस में करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं टू गेट दी प्रोडक्ट एट टाइम्स। There are certain luxury brands which work only on the complete 100% एडवांस पेमेंट या 50% एडवांस पेमेंट, सबका अपना अपना वो होता है कि उसके हिसाब से वो काम करते हैं। यानी कि हम आपको प्रोडक्ट आपका ऑर्डर लेंगे ही तब जब आप हमें कुछ ना कुछ पैसा एडवांस में दे देंगे, क्योंकि हमें में भी आपको कोई ऐसी सर्विस है जो प्रोवाइड करने में हमें बहुत पैसा लगाना पड़ेगा एडिशनल आपके लिए, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप अगर बल्क में ऑर्डर कर रहे हो तो उसके इन्वेस्टमेंट के लिए या आपको तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट पैसा करना है, तो ऑब्वियसली वो आपसे कुछ ना कुछ एडवांस में मांग लेंगे कि ऐसा नहीं हो कि कल को आप हमें बिल्कुल भी पैसा ना दो और आपकी वजह से जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऑर्डर को डिलीवर करने में वो हमें लॉस हो जाए। तो इसलिए कुछ बिजनेसेस हैं जो जिनका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है मार्केट में और कस्टमर्स का फेथ बहुत ज़्यादा है उसमें, तो वो उनको एडवांस पेमेंट भी थोड़ी बहुत या 100% जो भी पेमेंट का होता है टर्म, वो करने के लिए रेडी रहते हैं। लाइक सेलिंग फॉर एडवांस पेमेंट, मोस्ट ऑफ द कंपनी सेल देयर ऑफर्स ऑन क्रेडिट। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि उधार में ही अपना बेच लेती हैं कि ठीक है कस्टमर पैसा वो प्रोडक्ट ले जाए और हमें पैसा बाद में दे दे। जैसे कि बहुत बारी आजकल तो ये क्रेडिट पर भी चल रहा है कि हम इंस्टॉलमेंट्स में भी चीज़ें ले पाते हैं, तो बैंक्स हम पे भरोसा ही कर रहे हैं ना कि हमारा पैसा कंप्लीट पैसा, सपोज हमने फ़ोन लिया या कोई भी प्रोडक्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम या लैपटॉप खरीदा है और हम उसको इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं, तो बैंक हम हमारी बिहाफ पे पूरा पैसा कंपनी को दे देता है और अब हम इंस्टॉलमेंट में बैंक को देते हैं। तो वो बेसिकली एक तरह से क्या होगा कि हमने प्रोडक्ट तो खरीद लिया लेकिन हमने उधार पे खरीदा और वो पैसा हमें किसको देना है, बैंक को देना है। तो एक ट्रस्ट पर चलती है बात, अगर कल को बंदा पैसे ना ही दे तो बैंक का तो लॉस हो जाएगा ना। सो ऑल्दो इट लुक्स वेरी सिंपल ऑन द फेस ऑफ इट बट इट इज़ नॉट सो इजी, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर सो मेनी पीपल जो कल को उनको लगता ही है कि मैं नहीं देता। जैसे क्रेडिट कार्ड्स का भी सिस्टम आजकल है, क्रेडिट कार्ड कितने लोगों सबके पास होता ही है जनरली, जो जो अर्न करने लगते हैं बिजनेस में अपना या काम करने लगते हैं, सैलरी पर्सन होते हैं उनको मिल ही जाता है। तो अगर वो क्रेडिट कार्ड से अपना कुछ पेमेंट करते हैं और कल को वो उसकी पेमेंट ही नहीं करते हैं, बिल की पेमेंट नहीं करते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाता रहेगा बैंक या जो भी है। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो बैंक अल्टीमेटली क्या कर सकता है, इट विल टेक द पर्सन टू द कोर्ट, वो उसमें भी खर्चा ही है, पैसा लगाना पड़ेगा कोर्ट, तो नोबडी कैन गो विदाउट मनी, यू विल हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ लॉयर्स एंड अब सबसे बड़ा कि आपको अपना टाइम निकाल के वहाँ जाना होगा एंड ऑल दैट थिंग्स। तो ये बहुत ईजी दिखता है लेकिन है बहुत कॉम्प्लेक्स। किसी भी पर्सन को क्रेडिट पर कुछ भी देना, पैसा देना और फिर उससे बाद में पैसा निकलवाना जबकि उसका काम हो चुका है, वो बहुत डिफिकल्ट काम है। सो एंटायर प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी को इसलिए हमें सेट करना, जब हम बिजनेस के टर्म्स को अग्री कर रहे होते हैं, कोई भी दो पार्टी बैठ के बात कर रही होती है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है आप हमें ये प्रोवाइड करना, ये सप्लाई करना, हम आपको ये पेमेंट देंगे, इतना पेमेंट देंगे, इतने पैसों पर काम करेंगे, इस टाइम पर पेमेंट देंगे। ये सारी टर्म्स जो हैं जब हम बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं मीटिंग्स में तभी डिस्कस होती हैं और अग्री हो जाती है, और उस अग्रीमेंट के को हम पेपर पे भी ले आते हैं, मतलब इन द रिटन फॉर्म, और उस अग्रीमेंट को दोनों पार्टी साइन कर लेती हैं जो डिस्कशन होता है मीटिंग में। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल काम है डिस्कस करना के बाद उसको अग्री करना, दोनों पार्टीज अग्री भी हो जाए, और फिर अगर ये टाइम अगर अगर क्रेडिट पॉलिसी हो ही नहीं तो फॉलोअप करने का भी जो काम है वो बिल्कुल रुक जाए। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जो काम जो लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर का ही के अंडर होते हैं, वो फाइनेंस का ही काम होता है। वो टीम क्या करती है, सिर्फ जो क्रेडिट है उनसे फॉलो अप कर रही होती है, मेल्स भेजेगी एवरी डे के 100 लोगों को, 50 लोगों को, जो भी क्लाइंट हैं उन सबको मेल भेजेगी कि आपका इतना पैसा ड्यू है, काइंडली कंफर्म कब दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, क्या है। उसके बाद आ गया तो कहाँ से पैसा आया, वो किसका था, किसी और के अकाउंट में तो नहीं चला जाएगा, मतलब हमें ABC पार्टी है वहाँ से आया, हमने XYZ के पास तो नहीं चढ़ा दिया अकाउंट्स में। तो ये काम एक्स्ट्रा एक तरीके से बढ़ा हुआ है क्रेडिट पे काम करने के लिए।
की वजह से अगर सेम सेम टाइम पर हर कोई पैसा दे दे और काम कर ले तो आधा काम तो वैसे ही बच जाएगा। तो हर कंपनी की अपनी क्रेडिट पॉलिसी होती है, वो बनाते ही है, एचआर पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी के हिसाब से क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है, जिसमें कि पेमेंट टर्म्स होती हैं, कितना टाइम पीरियड होगा क्रेडिट का वो होता है, 30 दिन के बाद दोगे, 60 दिन तक दे सकते हो या वट एवर टाइम। ऑब्जेक्टिव्स of receivable management. Now in order to keep business running we need cash. रिसीवेबल्स मैनेजमेंट मतलब हम बिजनेस में लाइफ ब्लड ही है, कैश जो है लाइफ ब्लड ही था। हमने बताया था कि अगर ये नहीं होगा तो काम चल ही नहीं पाएगा, कैश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना स्टार्ट कर पाएंगे बिजनेस या फिर स्टार्ट करने के बाद ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। सो होल पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का भी है वो भी यही है कि हम इनफ्लो जो है कैश का वो बढ़ाएं। इनफ्लो पर ज़्यादा फोकस करता है रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि पेमेंट कलेक्शन, collect receivables from our debtors, maintain healthy cash flow for the company so that we can pay to our creditors also। हम हमारे पास पैसा हमारे डेटर्स से आएगा तो ही हम अपने क्रेडिटर्स को भी पे करेंगे, बस यही होता है बिजनेस में फ्लो, इधर से आया उधर चला गया, उधर से आया इधर चला गया। कैश फ्लो इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो चल हो गया, आउटफ्लो किया, फिर बाद में इनफ्लो के लिए फॉलो अप कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बिजनेस में रहती हैं कि आज कितना पैसा आया कितना पैसा गया एवरीडे। अगर हम फाइनेंस की बात करें और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें जो हमारा सब्जेक्ट है तो यही मेन काम है। हैव प्रॉपर पॉलिसी फॉर क्रेडिट मैनेजमेंट, जैसे हमने बताया कि क्रेडिट पॉलिसी ड्राफ्ट हो जाती है कंपनी के लिए और एवरीबडी हैज़ टू फॉलो, हैज़ टू इम्प्लीमेंटेड। क्रेडिट देना भी, हर सेल्स वाला जो सेल करेगा प्रोडक्ट वो भी क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से ही क्रेडिट करेगा और अपने क्लाइंट को अग्री कराएगा कि सर मेरी कंपनी की ये पॉलिसी है, इसके हिसाब से मैं आपको प्रोडक्ट बेच पाऊंगा, आपको इतने दिन के अंदर अंदर पैसा देना है। मेल पर अग्री करेगा या कैसे भी अग्री कर लेगा, फिर वो फाइनेंशियल वो काम आगे फिर फॉलो अप जो है क्रेडिट कंट्रोल टीम के पास चला जाता है। वर्किंग प्रोसेस एंड मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग पेमेंट फॉलो अप्स एंड टाइमली कलेक्शन। So just tell me what about tomorrow? Tomorrow we have the class at the same time in the morning, right? So we will try to have it done tomorrow. Otherwise, अगर कल class नहीं होता है, then I would want to wish you all very happy Diwali, and we will then be connecting next week. And only 2 topics are left. This one is going on, and the next one is the last topic. We will cover in the next week for 3 classes, whatever classes we will have. सो एंड वी विल ऑल्सो हैव द टेस्ट टुडे। मैंने आपको कल टेक्स्ट कर दिया था, आज थर्सडे है तो वी विल हैव द टेस्ट इन एवरीथिंग कम्प्लीटेड टुडे। इन एनी केस अगर कल आपकी क्लासेस होती हैं तो क्लासेस लूँगी मैं, और टेस्ट आपका जो था लेट इन द इवनिंग कल फ्राइडे का वो फिर वी हैव प्रीपोन्ड एंड इट विल बी टुडे इंस्टेड ऑफ टुमारो, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स में भी वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। किसी को कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो मुझे बताइए। मैंने ये जो बिल्स रिसीवेबल और एक और टॉपिक जो बचा है सिलेबस का, मैनेजमेंट ऑफ कैश तक जो हमने कवर कर लिया है। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए वो मैनेजमेंट ऑफ कैश तक ही दिए हैं। बिल्स रिसीवेबल्स और एक और टॉपिक जो लास्ट टाइम आया वो रह गया है, वो मैंने इसमें नहीं दिया आपको जो आज टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और तो मैंने नोट्स शेयर कर दिए बट उसमें मैंने कवर करके आपको क्वेश्चंस नहीं दिए क्योंकि हमने कवर नहीं करा है। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, इन दो में से आपको कुछ क्वेश्चंस आज नहीं आएंगे और ये 2 टॉपिक्स में आपके जो नेक्स्ट एमसीक्यू होगा एंटायर सिलेबस का उसमें कवर कर लूँगी। तो कैश मैनेजमेंट तक के क्वेश्चंस आएंगे। आपको सारे टॉपिक्स मैंने जो है ये नोट्स शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द टेस्ट। ओके।